کہ حسینیہ یتیم خانے میں لیڈیز فنڈ جی کی زیر اہتمام تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے بتایا کہ بلدیہ عظمی کراچی ویمن امپاورمنٹ کے فروغ میں پیش ہے۔ 100 لڑکیوں کو مزید تربیت دینے میں تعاون کروں گا۔ مرتضی وہاب نے نوید سنائی کہ جشن آزادی کی مناسبت سے 13 اگست کی شب ککڑی گراؤنڈ میں فٹ بال میچ ہوگا۔ آپ کو بتاتے چلیں شب ککڑی گراؤنڈ میں فٹ بال میچ ہوگا۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے سید زبیر راشد سے۔ جی بتائیے گا۔ ہاں جی بالکل، دیکھیں سولر سسٹینیبل انرجی کی مناسبت سے آج حسینی یتیم خانہ میں ایک تقریب منعقد کی گئی ہے اور میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی ہے۔ کیا کہیں گے؟ بڑی خوشی ہوئی کیونکہ بہت زیادہ کی ٹیک اویز ہیں اس ایونٹ کے۔ ایک تو یہ کہ ایک آرفنیج کے اندر یقینی بجلی فراہم کرنے کے لیے سولر پینلز کا افتتاح کیا گیا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ کلین گرین انرجی سے کمٹمنٹ ہماری قوم کی، ہماری حکومت کی اس میں نظر آتی ہے۔ تیسری چیز یہ سارا کام لڑکیوں نے کیا ہے، تو ویمن امپاورمنٹ کی سے ثبوت ملتا ہے، جس کے لیے میں تارا عذرا داؤد کو، لیڈیز فنڈ آرگنائزیشن کو مبارکباد دینا چاہوں گا اور ان کو مکمل اپنی سپورٹ کی یقین دہانی کرنا چاہوں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ اس طرح کے کام اور بڑے پیمانے پر شہر میں کیے جائیں اور جو شہر کی انتظامیہ سے ان کو مدد یا سپورٹ چاہیے ہوگی وہ تمام چیزیں ان کو ہم فراہم کریں گے۔ ہماری KMC کی لوکل کاؤنسل ہے، وہ پاکستان کی پہلی لوکل کاؤنسل بننے جا رہی ہے جس کو مکمل سولر انرجی پر ہم کنورٹ کریں۔ ہم نے اخبار میں اس کا ٹینڈر دے دیا ہے۔ ہم نے کڈنی ہل میں ریسنٹلی اپنا ایک سولر پارک، میونسپل سولر پارک اسٹیبلش کیا اور میں چاہتا ہوں ٹارگٹ ہمارے یہ کہ اس طرح کے اور بہت ساری انٹرونشنز شہر بھر میں کی جائیں۔ شہر کی 3 سڑکوں کو بھی ہم سولر انرجی پر کنورٹ کرنے جا رہے ہیں تاکہ اسٹریٹ لائٹس بھی جو ہیں وہ سولر پاورڈ ہوں۔ آپ کے چینل کے توسط سے تمام اہل وطن کو جشن آزادی کی بہت بہت مبارکباد دینا چاہوں گا۔ 13 اگست کی رات کو ایک فٹ بال میچ رکھا ہے ہم نے ککری گراؤنڈ میں۔ KMC اور لیاری ٹاؤن وہ میچ کھیلے گی، میں خود بھی میچ کھیلوں گا اور میچ کے بعد ہم نے میوزیکل ایوننگ اور فائر ورکس کا اور فلیگ ہوسٹنگ کا بھی انتظام کیا ہے۔ جی میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ وومن امپاورمنٹ کے لیے بلدیہ عظمی کراچی جو ہے ہر ممکن معاونت فراہم کرے گا۔ تاہم یوم آزادی کی مناسبت سے 13 اگست کو ایک ککری گراؤنڈ میں لیاری میں ایک فٹ بال میچ منعقد کیا جائے گا، جبکہ 14 اگست کو KMC میں جو ہے ایک پروکار تقریب جشن آزادی کی مناسبت سے منعقد کی جائے گی۔ جی شہر قائد میں جدید ٹیکنالوجی کا استعمال بھی اسٹریٹ کرمنلز کے گرد شکنجہ نہ کر سکا۔ 2000 سے زائد CCTV کیمروں کی تنصیب اور مانیٹرنگ کے باوجود گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کی چوری کی وارداتیں کم نہ ہو سکیں۔ CPLC کے اعداد و شمار کے مطابق شہر سے یومیہ 100 سے زائد گاڑیاں اور بائکس چوری اور چھینے جا رہے ہیں۔ کمیونٹی پالیسنگ چیف کا دعویٰ ہے کہ چند ماہ میں کرائم میں نمایاں عروس البلاد کراچی غریب پرور شہر، لیکن جرائم پیشہ عناصر ڈھا رہے ہیں اس پر قہر۔ CPLC کی جانب سے جاری ماہ جولائی کے اعداد و شمار کے مطابق ایک ماہ کے دوران 3870 گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں چھینی اور چوری کی گئیں۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق کراچی سے یومیہ 100 سے 150 کے درمیان گاڑیاں اور بائکس چوری ہو رہی ہیں۔ کمیونٹی پولیسنگ کراچی کے چیف مراد سونی کہتے ہیں کہ کرائم کو کم کرنے کے لیے ماڈرن پولیسنگ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ مراد سونی کے مطابق شہر میں کمیونٹی کی جانب سے 2000 مقامات پر کیمرے لگائے گئے ہیں، جبکہ 30 ایسے کیمرے بھی ہیں جو گاڑیوں کی نمبر پلیٹس کو شناخت کر کے یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ گاڑی کسی جرم میں شامل ہے یا نہیں۔ یہ جدید ٹیکنالوجی کے جو کیمرے ہیں وہ ہمارے تقریباً 30 کیمرے ہمارے لگ چکے ہیں، جو سبزی منڈی سے ہم نے شروع کیا ہے۔ سبزی منڈی یہ نارتھ علامات میں ابھی ہمارے لگنے جا رہے ہیں، عزیز آباد میں جو ہمارے لگ چکے ہیں، ہمارے سولجر بازار میں ہمارے لگ چکے ہیں، ہمارے پریڈی میں لگ چکے ہیں، تو ہمارے 30 کے قریب کیمرے ہم لگا چکے ہیں۔ لیکن یہ جو پورا پروجیکٹ ہے وہ 100 کیمرے کا ہے جو انشاءاللہ وہ لگنے جا رہے ہیں۔ مراد سونی کہتے ہیں کہ ترقی یافتہ ممالک میں کیمروں کے ذریعے کرائم کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ اگر کراچی پولیس بھی جدت پسندی کا مظاہرہ کرے تو جرائم میں نمایاں کمی آ سکتی ہے۔ کیمرامین واحد خان کے ساتھ معراج اختر، سٹی 21۔ کراچی میں جرائم کی سطح میں تشویشناک اضافہ ہو گیا۔ کراچی میں اسٹریٹ کرائم ماہ جولائی میں 5360 وارداتیں رپورٹ ہوئی۔ اسلحے کے زور پر 1490 موبائل فون، 609 موٹر سائیکلیں چھینی گئی۔ شہریوں سے اسلحے کے زور پر 19 گاڑیاں بھی چھینی گئی۔ کراچی والوں کی 3078 موٹر سائیکل، 164 گاڑیاں بھی چوری کی گئی ہیں۔ بات کرنے کے لیے کامران منہاس ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کامران بتائیے گا کہ دعویٰ تو کیا جا رہا تھا IG کی طرف سے بھی کہ کنٹرول کیا جا رہا ہے وارداتوں کو، لیکن ہم جب جولائی کے فیکٹس اینڈ فگرز دیکھ رہے ہیں تو معاملہ تو اس کے برعکس ہے۔
बिल्कुल मामला इसके बरक्स है। कराची शहर की जो है सूरत-ए-हाल जो है बहुत ज़्यादा ख़राब है। ऐसा लगता है कि पुलिस जो है जो क्रिमिनल्स हैं उनके सामने बेबस है, शहरी निशाने पे है और जो क्रिमिनल्स हैं वो बेलगाम है। कराची की सड़कों पर जब दिल चाहता है ये जो क्रिमिनल्स हैं, स्ट्रीट क्रिमिनल्स, डाकू यहाँ पर वारदातें करते हैं और उनको कोई रोकने वाला नहीं है। जुलाई के महीने के जो एजाद शुमार सामने आ रहे हैं जो CPLC की जानिब से जारी किए गए हैं वो बहुत ही ज़्यादा होशरबा है और यकीनी तौर पर कराची पुलिस के जो अफसरान हैं और कराची पुलिस के जो एहलकार हैं और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनके लिए लम्हा फिक्रिया है कि कराची के शहरी किस तरह से जो है स्ट्रीट क्रिमिनल्स के इस वक्त निशाने पे आए हुए हैं। अगर माह जुलाई की बात की जाए तो कराची में 5360 के करीब जो है वारदातें जो है आई हैं सामने। उसके अलावा इसमें स्ट्रीट क्राइम की भी जो है वारदातें बहुत ज़्यादा हैं। कराची के शहरियों से 600 से ज़्यादा गाड़ियां जो हैं मोटरसाइकिलें जो है वो गन पॉइंट पे छीनी गई हैं। उसके अलावा 3000 से ज़ायद गाड़ियां जो हैं कराची में चोरी भी कर ली गई हैं। उसके अलावा स्ट्रीट क्राइम का जो जिन है वो कराची में बिल्कुल बेकाबू दिखाई देता है। अगर हम कराची पुलिस के जो अफसरान हैं जिनकी जिम्मेदारी है कि वो जो है आवाम के जानो माल की हिफाजत करें, उनसे जब हम बात करते हैं तो उनकी जानिब से यही कहा जाता है कि हमने शाहीन फोर्स भी बनाई है। उसके अलावा दीगर फोर्सेस भी जो है कराची में काम कर रही हैं और वो जो है जराइम पे काबू पाने की कोशिश की जा रही है कर रही हैं, लेकिन जो सूरत हाल है उससे बरक्स दिखाई देती है। आए दिन जो है शहरी निशाना बन रहे हैं। मैं आपको बताऊं ये जो अदाद शुमार सामने आए हैं CPLC की जानिब से, ये वो रिपोर्ट है जिनके मुकदमात दर्ज हुए, जिन शहरियों ने जो है थानों में आकर जो है अपने मुकदमात दर्ज कराए, उनको रिपोर्ट किया है। इससे कई ज़्यादा तादाद उन शहरियों की है जो आए दिन जो है निशाना बन रहे हैं स्ट्रीट क्रिमिनल्स का कराची की सड़कों पर और वो रिपोर्ट भी जो है दर्ज नहीं कराते। और उसके अलावा मैं आपको बताऊं इस तरह की जो वारदातें हैं, मोटरसाइकिल चोरी, गाड़ी चोरी या मोबाइल छीनने की वारदातें, इसमें अगर शहरी जो है जब थानों में जाते हैं तो उन्हें कोशिश ये की जाती है कि किसी भी तरह से उन्हें जो है कच्ची रिपोर्ट काट के मुतमईन करके जो है उन्हें टरखा के भेज दिया जाए। इस वजह से भी जो है बहुत सारे वाक़यात रिपोर्ट नहीं होते, लेकिन जितने वाक़यात रिपोर्ट हुए वो इंतहाई जो है होशरबा है। कराची शहर जो है ऐसा लगता है कि स्ट्रीट क्रिमिनल्स के हाथों यरगमाल बन चुका है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों की अगर बात की जाए, अगर मैं इस वक्त मौजूद हूँ SSP कुरंगी के ऑफिस के बाहर, तो डिस्ट्रिक्ट कुरंगी में ही जो है बहुत ज़्यादा वारदातें हैं स्ट्रीट क्राइम की। अगर डिस्ट्रिक्ट कुरंगी के थानों की बात की जाए तो कुरंगी सनती एरिया थाने में इस तरह की वारदातें बहुत हैं। छीना झपटी की, खासकर जो कॉजवे नदी है वो तो एक कराची में बदनामे ज़माना सड़क बन चुकी है। आए रोज़ जो है वहाँ पर घात लगा के शहरियों को लूटा जाता है, नाका लगा के लूटा जाता है। उसके अलावा इस डिस्ट्रिक्ट में और भी मुख्तलिफ मकामात पर जो है इस तरह से डकैत सरगर्म होकर नाके लगा के कार्रवाई करते हैं। इसी तरह से अगर हम सेंट्रल की बात की करें तो नॉर्थ कराची, बिलाल कॉलोनी थाना, ख्वाजा अजमेर नगरी थाना के कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर वारदातें बहुत ज़्यादा हैं। और सोराबगोट थाना या सच्चल थाने की बात की जाए तो वहाँ ऐसा लगता है कि एक शहरी जो है लुटने के लिए वहाँ पर सफ़र करते हैं। वहाँ तो वारदातों का ग्राफ बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि कराची के ये मज़ाफ़ाती इलाके इन्हीं रास्तों से होकर अक्सर शहरी जो है कराची से बाहर भी जाते हैं और कराची के अंदर भी दाखिल होते हैं। और बहुत ज़्यादा वहाँ पर जो है यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, उसके अलावा काम करने वाला इंडस्ट्रियल एरिया भी, तो वहाँ पर वारदात करना जो है स्ट्रीट क्रिमिनल के लिए बहुत आसान हो गया और आए दिन जो है वो निशाना बनते रहते हैं। पुलिस की पहली कोशिश यही होती है कि सिर्फ जो है उनसे दरख्वास्त लेकर या उन्हें मुतमईन कर करके भेज दिया जाए। अगर उनका मोबाइल फ़ोन छीनता है तो आगे इतनी ज़्यादा मुश्किलात होती हैं कि इसका डब्बा लेके आएँ। जब उसका डब्बा लेके आते हैं फिर उसके बाद जो धक्के शहरियों को खाने पड़ते हैं वो बहुत बड़े मसाइल शहरियों के लिए पैदा कर रहे हैं। और खुशकिस्मती से जब मुकदमा दर्ज हो जाता है, कार्रवाई होती है और अगर कोई स्ट्रीट क्रिमिनल गिरफ्तार भी हो जाए तो अगर एक शहरी का जो मोबाइल है वो मिलना एक उसके लिए बहुत बड़ा जो है केटू सर करने के बराबर हो जाता है, क्योंकि वो केस प्रॉपर्टी बन जाता है। और जब उसको मोबाइल मिलता है तो अक्सर औकात ऐसी सिचुएशन भी सामने आई है कि मोबाइल के अंदर कुछ भी नहीं होता, उसका सारा सामान निकाल लिया जाता है। तो कराची के शहरी जो है स्ट्रीट क्रिमिनल्स का तो शिकार हैं ही हैं। पुलिस की जो है गैर तसल्ली बख्श कारकर्दगी की वजह से भी परेशान है और अपनी कीमती चीज़ों से मुसलसल महरूम हो रहे हैं। कराची के शहरियों से जो हमारी इस हवाले से बात हुई है, जो नया ग्राफ आया है
जो सिचुएशन नज़र आ रही है कराची शहर की, जिस तरह से स्ट्रीट क्राइम की वारदातें बढ़ रही हैं, कराची के शहरी जो है अपने आप को गैर महफूज समझते हैं। उनकी जानिब से जो है पहले भी ये मुतालबा किया जाता रहा है, फिर जो है इल्तिजा की जा रही है कि खुदारा कुछ ऐसे इंतजामात करें कि कराची के शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को, उनके जानो माल को जो है महफूज बनाया जा सके। उनका एक शिकवा नज़र आता है कि VIP प्रोटोकॉल पे तो पुलिस बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन थानों में जो है पुलिस एहलकार भी ये शिकवा करते हैं कि हमारे पास नफरी कम है, बड़े बड़े इलाके हैं, नफरी बहुत महदूद है, जिसकी वजह से आवाम जो है इस वक्त बेहाल है और स्ट्रीट क्रिमिनल्स के जो है निशाने पे है। जी बिल्कुल, स्ट्रीट क्रिमिनल्स के निशाने पर हैं। कामरान मिन्हास हमारे साथ मौजूद हैं और डिस्कस हो रही है शहर की इस वक्त सूरत हाल। जराइम की सतह में तशवीशनाक हद तक इजाफा हो चुका है। कराची में स्ट्रीट क्राइम माह जुलाई में 5360 वारदातें रिपोर्ट हुई हैं। कामरान मिन्हास हमारे साथ ही मौजूद हैं। कामरान, हर 2 से 3 महीने के बाद एक इजलास बुलाया जाता है। अनुषा जाफरी ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, इस पर उनसे बात कर लेते हैं। अनुषा, हर 2 से 3 महीने के बाद एक इजलास होता है, एक नई पुलिस फोर्स का क़याम होता है। कुछ अर्सा पहले पेट्रोलिंग पुलिस को लेकर आया गया, लेकिन उनकी बाइकें हमें ख़राब खड़ी हुई नज़र आई। इसी तरह नई नई फोर्सेस तो मुतारिफ करवाई जा रही हैं, लेकिन कोई बेहतरी नहीं आ रही है सिंध पुलिस के अंदर। बिल्कुल कोई बेहतरी नहीं आ रही है। बेहतरी लाने की जो है वो नई कराची पुलिस चीफ कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर हम बात कर लें एक चीज की तो यहाँ पर सबसे अहम बात यह है कि जो अभी बीच के अंदर जो अभी चेंजेस हुई, जिसके अंदर जो है वो नए DIG तैनात कर दिए गए थे और उसके अंदर जो है वो तमाम तर जब वजीर आला भी चेंज हुए थे और फिर जो है वो सब वजीर आजम भी चेंज हुए थे, जो वो फिर दोबारा से हुकूमत बनी, उस दौरान की जो DIGs और SSP लगे हुए कुछ आज अब के दौर में भी वही लगे हुए हैं, जो कि खुद अपने जो है वो जोन्स में स्ट्रीट क्राइम को जो है वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। जबकि जब हुकूमत बनी उसके बाद जो है वो कई जो है वो ऑफिसर्स को चेंज किया गया, जिन्होंने कोशिश की। अगर हम वेस्ट की बात कर ले, वेस्ट जोन की, तो वहाँ पर DIG इरफान बलोच को दोबारा से जो है वो चार्ज दिया गया। एक जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑफिसर है, तो वहाँ पर अभी स्ट्रीट क्राइम जो है वो कंट्रोल में। अगर हम ईस्ट जोन की बात कर लें तो ईस्ट में भी जो है वो वारदातों में इजाफा है। अगर साउथ जोन की बात करें तो वहाँ पर भी वारदातें ज्यादा हैं, क्योंकि साउथ और ईस्ट जोन के ऑफिसर जो है वो तब्दील नहीं किए गए DIG लेवल के ऊपर। वो जो लगे हुए थे वही लगे हुए हैं और हुकूमत आने के बाद भी जो है वो दोबारा से उनको तब्दील जो है वो नहीं किया गया, क्योंकि वो सियासी मदाखलत है क्या है। उनको अभी तक उनकी सीट दी हुई है और वो जिस तरीके से लेके चल रहे हैं वैसे ही लेके चल रहे हैं, जो उनसे क्राइम कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, जो कि क्लियर है। इसके अलावा जो वज़ीर दाखिला सिंध की अगर हम बात कर ले, जराये बताते हैं कि वो भी कोशिश में लगे हुए हैं कि ऑफिसर्स को तब्दील किया जाए और नए ऑफिसर्स को चांस दिया जाए ताकि वो स्ट्रीट क्राइम कंट्रोल करें, लेकिन ये भी जो है वो नहीं हो पा रहा है। हम देख रहे हैं कि स्ट्रीट क्राइम में माह जुलाई की अगर हम बात कर ले तो 5360 वारदातें रिपोर्ट हुई हैं, जो CPLC जराये बताते हैं। असले के जोर पर 1490 मोबाइल फोन्स और 609 मोटरसाइकिलें जो है वो छीनी गई हैं और शहरियों से जो असले के जोर पर 19 गाड़ियां भी जो है वो छीनी गई हैं। इसके अलावा जो है वो कराची वालों की 3078 मोटरसाइकिलें, 164 गाड़ियां भी जो है वो चोरी जो है वो की गई हैं। ये पूरा अगर हम बात कर लें तो ओल्ड सिटी एरिया है, यहाँ पर जो है वो बाइकें चोरी होने की वारदातें ज्यादा हैं। इसके अलावा अगर हम कोरंगी की बात कर लें तो कोरंगी में ज्यादा हैं, मलीर में भी वाक़यात जो है वो ज्यादा हैं, साउथ में भी वाक़यात ज्यादा हैं। इसके अलावा किमाड़ी की अगर हम बात कर लें तो वहाँ पर भी ये वाक़यात ज्यादा हैं। और ये कराची पुलिस और ये जो है वो कराची पुलिस चीफ का जो है वो नहीं है, वो तो बोलते हैं ऑफिसर्स को कि क्राइम को जो है वो कंट्रोल किया जाए, लेकिन जो है वो जो ऑफिसर्स हैं वो कुछ ऐसे हैं जो कि नाकाम हैं अपने अंडर आने वाले एरिया को कंट्रोल करने के, वहाँ पर क्राइम जो है वो कम किया जाए। अब कोशिश भी की थी वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार की जानिब से कि अब जो है वो अच्छे ऑफिसर को लगाया जाए जो कि क्राइम पर काबू पा सके। अब जो है वो DIG इरफान बलोच जो है वो कोशिश तो कर रहे हैं कि अब जो है वो उनकी जानिब से अगर हम डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और वेस्ट की बात कर लें तो वहाँ पर थोड़ा बहुत तो क्राइम है, लेकिन अभी भी जो है वो क्राइम थोड़ा बहुत जो है वो कंट्रोल में जो है वो देखने में आ रहा है। अब जो है वो लेकिन अभी चैलेंजिंग है पुलिस के लिए कि आया ऑफिसर तब्दील करने पड़ेंगे स्ट्रीट क्राइम कंट्रोल करने के लिए, क्या करना पड़ेगा, क्योंकि एडिशनल IG तब्दील कर दिए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है वो स्ट्रीट क्राइम कंट्रोल थोड़ा बहुत हुआ है। अगर हम बात कर ले जनवरी से लेकर 6 माह की, जिसमें इमरान याकूब मिन्हास को और खाजिम हुसैन बिन जो है वो एडिशनल IG थे, तो उस दौरान जो है वो डकैती मजामत पर जो है वो शहरियों के कत्ल की वारदात 80 जो एक रेशियो है, 80 अफराद कत्ल हुए। इनके
इनकी पोस्टिंग के दौरान अगर हम बात कर लें कि ये कंट्रोल नहीं कर पाए, ये बैठे हुए सीट पर मौजूद हैं। जिस तरीके से अभी जो है वो इमरान याकूब मिन्हाज को इससे पहले जो है वो इजाफी चार्ज दे दिया गया था, वो एडिशनल आईजी सीटीडी भी थे और फिर इनको एडिशनल आईजी का इजाफी चार्ज दिया। कई महीनों तक तो जो है वो एडिशनल आईजी कराची की तैनाती ही नहीं हुई सियासी मदाखलत की वजह से। आईजी सन की बात कर रहे हैं तो राजा रिफत मुख्तार के दौर में जो डीआईजी लगाए गए थे उनमें से अब जब आईजी सन गुलाम नबी मेमन आए तो 2 डीआईजी ऐसे हैं जिनको अभी तक ताहाल तब्दील नहीं किया गया, जिसमें डीआईजी ईस्ट और डीआईजी साउथ है। उसको भी तब्दील करने के लिए हमारे ज़राए बता रहे हैं वज़ीर दाखिला सिंध लगे हुए हैं, लेकिन जो है वो सियासी मदाखलत बीच में आ जाती है जिसको चेंज नहीं किया जाता। स्ट्रीट क्राइम के बढ़ने की वजह तो हमें जो नजर आती है कि सियासी मदाखलत कुछ ज़्यादा ही जो होने लगी है अफसरान की पोस्टिंग के अंदर। और साथ हम देख रहे हैं कि आज तो वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं, खाली जख्मी होने के नहीं, हलाकतों के नहीं, बल्कि बहुत से वाक़यात आ रहे हैं। अनुषा जाफरी हमें अपडेट करी थी। अनुषा, बहुत शुक्रिया आपका। इसी पर बात करने के लिए कामरान मेनाज हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान, ये बताइएगा कि आए दिन जराइम की सतह में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, हुकूमत की जानिब से इस हवाले से क्या कोई इक़दाम किए गए हैं इसकी रोकथाम के लिए? देखिए, मैं आपको कराची का मसला बताता हूँ, कराची पुलिस का मसला बताता हूँ जो हम अपनी आंखों से देखते हैं जब हम थानों में जाते हैं और पुलिस की हालत ज़ार देखते हैं। वो हक़ाइक़ जो है मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। अगर पूरे कराची शहर की बात की जाए तो ये बात बिल्कुल सच है कि पूरे कराची शहर में जो है स्ट्रीट क्रिमिनल जो है बेलगाम है और शहरी यरगमाल हैं। और सूरत हाल कराची पुलिस की तबाही के दहाने पे जाने की ये है कि कराची पुलिस के जो थाने हैं वो तबाही का मंजर पेश कर रहे हैं, तबाह हाल थाने। मैं आपको बताऊं कि जो रिपोर्ट है, जो इतलात हैं कि कराची पुलिस का जो बजट है वो सालाना अरबों रुपए का है, जिसमें हर थाने को जो है अलग अलग बजट दिया गया है। अगर मैं किसी एक थाने की बात करूं तो कोई भी थाना कराची पुलिस का ऐसा नहीं है जिसका सालाना बजट जो है 7 करोड़ से कम हो। तो इतना बड़ा बजट है, वो बजट कहाँ जा रहा है? मसला ये है कराची पुलिस के एहलकारों के साथ कि थाने में जो पुलिस एहलकार हैं उनकी नफरी इंतहाई कलील और कम है। 2 शोबे हैं, इन्वेस्टिगेशन, ऑपरेशन में भी 2 शिफ्टें होती हैं। 12-12 घंटे की जो है ये पुलिस एहलकार नौकरी करते हैं और नफरी शदीद कम होने की वजह से हर जगह पे जो है पिकेट लगाना मुमकिन नहीं है। पुलिस की पेट्रोलिंग इतनी ज़्यादा मुमकिन नहीं है जितनी कराची शहर को ज़रूरत है इस वक्त इस कराची शहर के लोगों की हिफाजत के लिए। तो सबसे बड़ा कराची पुलिस का मसला जो है वो जो है नफरी की कमी है। और उसके अलावा दूसरी बात मैं बताऊं, वसाइल की शदीद कमी है कराची पुलिस को। अफसरान की सीटें बदलने से ये मसला हल नहीं हो सकता। ये आए दिन जो है सियासी मामला ज़रूर होते होंगे, यकीनी तौर पर इस वजह से भी तबादले होते होंगे, लेकिन इस वक्त भी जो मौजूदा पुलिस के अफसरान हैं, अगर मैं तमाम की बात करता हूं तो यकीनन जो है तमाम एक्सपीरियंस वाले, तजर्बा रखने वाले, क्राइम को कंट्रोल करने के लिए बाकायदा उन्होंने ट्रेनिंग हासिल की हुई है। और जब उनसे मुलाकात होती है तो लगता भी है वो क्राइम को कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन पुलिस के पास वसाइल नहीं है। सवालिया निशान जो सबसे बड़ा है वो ये है करोड़ों रुपए का बजट जो है कहाँ जा रहा है। अगर कराची से हटके, सिंध से हटके अगर हम बात करें, जो पाकिस्तान के जो दूसरे इलाके हैं वहाँ पर थानों की हालत ज़ार जो है बहुत अच्छी नज़र आती है। पुलिस वालों को जो है उनको फैसिलिटेट किया जाता है, उनको सहूलियत दी जाती है ताकि वो जुर्म के ख़िलाफ़ अच्छा काम कर सके। लेकिन यहाँ की जो सूरत हाल है, कराची पुलिस के पास सहूलियात नहीं है। जो सिपाही रैंक के लोग हैं, ASI हैं या SHO लेवल तक के लोग हैं, उनके पास सहूलियात नहीं है। उनके पास थाने चलाने के लिए, थाने का खर्चा चलाने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं होते, जिसकी वजह से कराची में जो ऑर्गेनाइज क्राइम है वो किसी सूरत जो है बंद नहीं होना जा रहा है। आला अफसरान हो, IG सिंध हो या दीगर कोई भी अफसरान मुख्तलिफ जोन्स के हों, उनकी जानिब से जो है कहा जाता है कि पुलिस को बिल्कुल शफाफ किया जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, कराची पुलिस कभी भी शफाफ नहीं हो सकती जब तक उनको सहूलियात नहीं फराहम की जाएंगी और जब तक कराची पुलिस कामयाब नहीं हो सकती जुर्म पर काबू पाने में। पुलिस के पास थाने चलाने के पैसे नहीं हैं और इसी वजह से जराइम भी कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, कामरान मेनाज हमारे साथ ही मौजूद रहिए। कराची में जराइम की सतह में तशवीशनाक इजाफा हो गया है और जिस तरह दूसरे शहरी खौफ का शिकार होते हैं, महानूर हम भी जब ऑफिस आ रहे होते हैं यकीन कीजिए अक्सर डर लग रहा होता है। हालांकि ऑफिस की गाड़ी में होते हैं लेकिन डर लग रहा होता है कि कभी कोई यहाँ से आ जाएगा, कभी कोई वहाँ से आ जाएगा। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, वाकई ऐसी है। कराची में जराइम की सतह में तशवीशनाक इजाफा हो गया है। कराची में स्ट्रीट क्राइम 2 माह जुलाई में 5360 वारदातें रिपोर्ट हो चुकी हैं। असलहे के ज़ोर पर 1490
मोबाइल फ़ोन्स, जबकि 609 मोटरसाइकिलें छीनी गईं। शहरियों से असलहे के ज़ोर पर 19 गाड़ियां भी छीनी गई हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे मिराज अख्तर। जी मिराज, अभी हमें ज्वाइन किया था हमारे नुमाइंदे कामरान मेनाज से। उनकी जानिब से कहा जा रहा था कि नफरी की कमी बहुत ज़्यादा देखने में आ रही है, तो बताइएगा कि जो हुकूमत है वो इस जानिब से क्यों इतनी गाफिल नजर आ रही है, क्यों नहीं वो नई भर्तियाँ करती? देखिए, भर्तियों का इशू चल रहा है क्योंकि भर्तियाँ भी शुरू होने वाली हैं, उस हवाले से भी जो है वो पुलिस काम कर रही है। लेकिन हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा इशू है वो ये है कि जो मौजूदा नफरी है वो अपनी जो है सिक्योरिटी की और गार्ड्स की ड्यूटी में ज़्यादा है। सियासतदानों के पास बहुत सारे ऐसे पुलिस एहलकार हैं जो उनके पास 24 घंटे की मुलाजमत कर रहे हैं। थानों में से हमेशा से ये प्रॉब्लम रही है कि थानों में तो गाड़ियों की कमी का सामना रहता है और नफरी की कमी का सामना रहता है। तो कराची के में तकरीबन मजमूई तौर पर 108 थाने हैं, जहाँ पर हर थाने में अगर हम उनकी स्ट्रेंथ को शो करेंगे तो पता ही चलेगा कि बहुत सारे लोग वहाँ से सिक्योरिटी ड्यूटी पर हैं। तीनों जोन जो कि साउथ जोन है, ईस्ट जोन है और वेस्ट जोन है, यहाँ से बहुत सारे एहलकार जो हैं वो सरकारी जो अफसरान हैं उनके पास ड्यूटी पर हैं या फिर सियासतदानों की ड्यूटी पर है। तो एक वजह तो ये है, और दूसरी वजह यह है कि कराची में क्राइम को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिशें की जा रही हैं। और मैं आपको ये बताऊं कि जो कम्युनिटी पुलिसिंग है कराची की, उसकी जानिब से कराची में 2000 से ज़ायद मुकामात पर कैमरे भी लगा दिए गए हैं और उसके लिए 15 मुकामात पर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स भी कायम कर दिए गए हैं। पुलिस को बहुत ज़्यादा आसानियां फराहम करने के लिए कम्युनिटी ने अपने तौर पर तो काम कर लिया है। अब बात यह है कि पूरे दुनिया में जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं और शहर हैं उनमें कैमरों के जरिए ही क्राइम को कंट्रोल किया जाता है। और यहाँ भी यही कोशिश हो रही है, मॉडर्न पुलिसिंग के जाने को भी जा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद अब मसला ये है कि कराची में लूटमार की वारदातें जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। अगर हम कहें कि बहुत ज़्यादा बड़ी है तो वाकई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि कराची जैसे मेगा सिटी शहर में रोज़ की बुनियाद पर जो रेशो निकाला गया है, जो गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें चोरी होती हैं या छिनती हैं, तो वो 100 से ज़ायद है। यानी कि 100 से 150 के दरमियान में गाड़ियाँ रोज़ाना कराची के मुख्तलिफ इलाकों से चोरी भी की जाती है और छीनी भी जाती हैं, और रिकवरी जो है वो 10% भी नहीं रहती है। तो शहरी बेचारे सूरत में परेशान है। अब आपको बताऊँ कि सिर्फ चोरी होने की जो वारदात है ना, खाली मोटरसाइकिलों की, वो तकरीबन 3078 मोटरसाइकिलें जो है माह जुलाई में मजमूई तौर पर जो है वो चोरी हुई है, और इसके अलावा जो है 609 मोटरसाइकिलें गन पॉइंट पर छीनी गई हैं। तो यही तकरीबन जो है वो 3700 के करीब जो है इसका रेशो बन रहा है। 3700 के करीब खाली मोटरसाइकिल है। इसके अलावा 19 कारों को गन पॉइंट पर छीना गया है और 164 कारों को चोरी करके ले गए नामालूम मुसल्लह अफराद। तो ये सूरत हाल है शहर में। और इस पर जब हम आला पुलिस अफसरान से बात करने की कोशिश की हमने, तो उन्होंने इस पर हमसे ऑन कैमरा बात करने से मना किया, और ये साथ साथ में ये बताया कि अब CCTV कैमराज की मदद से उनको बहुत ज़्यादा आसानियाँ भी हो गई हैं, और अब तो ऐसे कैमरे जदीद भी आ गए हैं जिसमें शनाख्त हो जाती है कि उसकी जो नंबर प्लेट होती है कार की हो या मोटरसाइकिल की हो, जिससे फ़ौरन पता चल जाता है कि ये किसी क्राइम में मुलव्वस है या नहीं है। तो कह रहे हैं कि चंद माह लगेंगे। आला हुकाम का भी यही कहना है और कम्युनिटी पुलिसिंग चीफ का भी यही कहना है कि 2 से 3 माह में बहुत ज़्यादा जो है कंट्रोल देखने में आएगा और बहुत ज़्यादा वारदातों में कमी देखने में आएगी। लेकिन जो अभी मौजूदा जो हमने जो 7 माह का जो डेटा निकाला है CPLC के जो आदाद व शुमार हैं, वो हमें बताते हैं कि अभी तक कोई ख़ास फर्क नहीं पड़ा है, जबकि रोज़ की बुनियादों पर पुलिस की जानिब से गिरफ्तारियाँ भी जारी हैं, मुकाबले भी हो रहे हैं, डाकू हालात भी हो रहे हैं, डाकू जख्मी भी हो रहे हैं। उसके बावजूद ये रेशो चल रहा है कराची में। तो पुलिस का बहरहाल यही दावा है कि 2 से 3 माह में इसमें बहुत बड़ी उनको जो है कामयाबी मिलेगी और बहुत बड़ी उनको और बहुत ज़्यादा जो है वो कमी देखने में आएगी। जी बिल्कुल, मामलात जो हैं वो तशवीशनाक ही हैं। कराची में जराइम की सतह में इजाफ़ा हुआ है। कामरान मिन्हास हमारे साथ ही मौजूद हैं। कामरान, यहाँ पर अगर हम देखें तो जराइम की तारीख कोई बहुत ज़्यादा नई नहीं है, बल्कि 1989 से कराची जो है वो जराइम की जद में है। मुस्तफ़ा कमाल भी आए, वसीम अख्तर भी आए, अब मुर्तज़ा वहाब भी हैं, मुराद अली शाह ने भी मनसब संभाला, उसके अलावा कायम अली शाह भी उससे पहले थे। कौन से अनासर हैं जो कराची में जराइम को ख़त्म नहीं होने देते, कंट्रोल नहीं होने देते? एक बहुत अरसे तक इक़्तिदार में, कराची के इक़्तिदार में MQM भी रही, पीपल्स पार्टी का दौर है, लेकिन हालात में कोई तब्दीली नहीं आई। जी बिल्कुल, देखें आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है कि कराची के हालात जो है किसी सूरत दुरुस्त नहीं हुए। मुख्तलिफ लोग यहाँ पर आए, बड़े बड़े दावे ज़रूर किए गए,
لیکن کراچی کے لوگوں کو جو ہے تحفظ فراہم کرنے میں جو ہے تقریباً سبھی لوگ ناکام ہوئے ہیں. میں اگر کراچی کی زمینی حقائق کی آپ کو بات کروں تو کراچی پولیس کا میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ ان کے پاس وسائل نہیں ہیں, اور جو باقی مائندہ پولیس جو ہے تھانوں میں بچ گئی ہے وہ آرگنائز کرائم کرانے میں مصروف ہے, کیونکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم تھانوں کے خرچے کیسے اٹھائیں. تھانے کے اندر جو بل آتے ہیں, مہمانوں کا خرچہ ہوتا ہے, اس کے علاوہ جو ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اوپر والے بھی جو ہے کبھی بھی کوئی جو ہے ان سے مطالبہ کرتے ہیں تو ان کو وہ پورا کرنا پڑتا ہے, یہ ایس ایچ او صاحبان کے کہنے. تو اس وجہ سے جو ہے کراچی پولیس جو ہے ابھی عوام کی جانوں مال کے تحفظ کو چھوڑ کر جو ہے زیادہ تر آرگنائز کرائم میں مصروف ہے. ان کا زیادہ انٹرسٹ اسی چیز میں ہوتا ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ آرگنائز کرائم کو چلا سکتے ہیں, جس میں مختلف قسم کے جو ہے کرائم چلتے ہیں. اور صورتحال یہ ہے کہ کراچی پولیس کے پاس اتنا بھی فنڈ نہیں ہوتا ہے, یہ میں بالکل سچ اور ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ اتنا بھی فنڈ نہیں ہوتا کہ اگر انہیں اپنے کسی شہید کی تقریب کرنی ہو یا انہیں کوئی ایسا ایونٹ کرنا ہو جو پولیس کے حوالے سے ہی ہو, اس کو بھی جو ہے وہ کر سکے. اس کے لیے بھی جو ہے آرگنائز کرائم والوں کو اس سے باقاعدہ رابطہ کر کے ان سے کھانے اور رقمیں لی جاتی ہیں. تو کراچی پولیس کی صورتحال جو ہے بہت زیادہ خراب ہے. بالکل یہاں پر جو ہے متحدہ قومی موومنٹ جو ہے وہ ایک طرح سے بہت لمبے عرصے جو ہے یہاں پر ان کا میئر کراچی بھی رہا, اس کے علاوہ جو ہے وہ ان کے ایم پی اے ایم این ایس بھی رہے, اور ابھی بھی ان کے ایم پی اے ایم این ایس موجود ہیں. لیکن میں آپ کو بالکل حقائق بتا رہا ہوں کہ اس وقت جو ہے ان کے جو ایم پی اے ایم این اے ہیں, ایسا لگتا ہے کہ وہ ووٹ لینے کے لیے ضرور یہاں پر آئے تھے, اس کے بعد وہ لاپتہ ہو چکے ہیں, ان کی تلاش کی جا رہی ہے. ان کے تحت ایکسپو سینٹر میں فوڈ ایگری نمائش, جزاک و گلوبل کے دھوم سٹال آنے کے والوں کی توجہ کا مرکز. ڈائریکٹر جزاک گلوبل تیمور جنید جمشید کہتے ہیں کہ دنیا کے 55 ممالک میں 200 سے زائد مصنوعات ایکسپورٹ کرتے ہیں. تفصیلات وسیم افتخار کی اس رپورٹ میں. بالکل فاسٹ موونگ کنزیومر گڈس کی بات کی جائے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جزا گلوبل کمپنی کا بڑا نام ہے, جس کی ایکسپورٹ جس میں چاول ہے اور جو دیگر کھانے پینے کی اشیاء ہیں اس کی ایکسپورٹ یو کے ہے, یو ایس ہے, کینیڈا سمیت مختلف یورپین ممالک اور مختلف دیگر ممالک میں بھی ہے. اس وقت میں ساتھ موجود ہیں ڈائریکٹر جزا گلوبل تیمور جمشید, ان سے جانتے ہیں. تیمور, پہلے تو یہ بتائیں کہ کیا کہیں گے آج جو آپ نے اپنی یہاں پہ اس ایکسپو میں اپنی جو پروڈکٹ شو کیس کی ہیں وہ کون کون سی ہیں, اور ایکسپورٹ آپ کن کن ممالک میں کر رہے ہیں اور مزید ایکسپورٹ کتنا بڑھانا چاہ رہے ہیں, کن کن ممالک میں کریں گے؟ سب سے پہلے تو ویورز کو السلام علیکم, اور میں یہ کہوں گا کہ ٹڈیپ کی طرف سے بہت بہترین انیشیٹو ہے, ناٹ جسٹ فار دا اسمالر بزنسز بٹ دا لارجر بزنسز آلسو, کہ ایک ہی روف کے اندر جو ہے آپ نے پورے گلوب کو کنیکٹ کر دیا ہے, تاکہ آپ کی اگر کوئی جا نہیں سکتا تو وہ ان کو لے کر آ گئے یہاں پہ کنیکٹ کرنے کے لیے. الحمدللہ جزا جو ہے وہ 55 کنٹریز میں ایکسپورٹ کر رہا ہے, اور اس میں ہماری بہت ماسیو رینج ہے 200 پروڈکٹس کی, جس میں آپ نے بتایا رائس ہے, سالٹ کی پوری رینج ہے, بیکری کی پوری رینج ہے, ریسیپی مکسز ہیں, سنیکس ہیں, کچن کے پورے اسینشلز ہیں. تو یہ بیسکلی میرے فادر کی ایک ویژن تھی کہ پاکستانی پروڈکٹس کو آل اوور دا ورلڈ لے کر جانا ہے, تو ان نے بیس ہمارے لیے اس وقت سیٹ کر دی. اب اس کو جو ہے ہم آگے لے کے بڑھ رہے ہیں. یہ تھے ڈائریکٹر جزا گلوبل تیمور جنید جمشید, جن کا کہنا ہے کہ ان کی جو پروڈکٹس ہیں تقریباً 200 سے زائد پروڈکٹس دنیا کے 55 ممالک میں جا رہی ہے, اور انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ پوری دنیا میں یہ پاکستانی پروڈکٹس کو لے کے جائیں گے اور پاکستان کی ایکسپورٹ کو بڑھائیں گے. جی. بارش کے بعد عزیز آباد کا محمدی کرکٹ گراؤنڈ جھیل میں تبدیل ہو گیا. گراؤنڈ میں گڑھوں کے باعث پانی کی نکاسی ممکن نہیں. کھلاڑیوں نے متعلقہ انتظامیہ سے پاک کی صورتحال پر نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا. محمد حماد کی رپورٹ دیکھیں. ڈسٹرکٹ سینٹرل میں کھیلوں کی سرگرمیاں متاثر ہونے لگیں. کراچی میں بارش کے بعد عزیز آباد UC 6 کا محمدی گراؤنڈ جھیل میں تبدیل ہو گیا. 20 روز سے بارش کا پانی جمع ہونے سے علاقے کے بچے کرکٹ کھیلنے سے قاصر ہیں. گراؤنڈ میں کرکٹ کھیلنے کے لیے آنے والے کھلاڑیوں کا کہنا ہے کہ گراؤنڈ کی حالت کے ذمہ دار علاقے کے مقامی لوگ ہیں. گراؤنڈ پارکنگ یارڈ میں تبدیل کیا گیا ہے, جبکہ جو حصہ بچا تھا وہاں بھی پانی ہے. گراؤنڈ کی صورتحال اتنی خراب ہے, اس میں سب سے زیادہ جو اس میں ملوث ہے نا وہ یہاں کے خود کے رہائشی ہیں. انتظامیہ تو بعد میں آئے گی, جب ظاہر سی بات ہے علاقے والے ہی نہیں خیال رکھیں گے تو انتظامیہ کو کیسے پتہ چلے گا کہ بچے کتنے کھیلنے والے ہیں, نہیں کھیلنے والے, کیا ہے سب کچھ. اب یہ پانی جس طریقے سے کھڑا ہوا ہے 2-2.5 مہینے تو سمجھا آپ چلے ہی گئے اس طریقے سے پانی میں ہی نا. اب بچے یہی ہیں ظاہر سی بات ہے, پھر اپنے علاقے کے چھوڑ کے وہ پھر کہیں اور کھیلنے جاتے ہیں. گراؤنڈ میں کھیلنے والے سینئر کھلاڑی اور فوٹو جرنلسٹ جنید حسن کا کہنا ہے کہ نعمت اللہ خان کے دور میں یہاں لائٹس لگیں اور بڑے ٹورنامنٹس ہوتے تھے, لیکن اب یہ گراؤنڈ تباہ ہو گیا ہے. نعمت اللہ خان صاحب کے دور میں 2004 میں یہاں لائٹیں لگیں,
اس کے بعد یہاں کرکٹ بحال ہوئی اور تقریباً عالمی سطح پہ جو ہے یہاں کرکٹ بحال ہوئی، ٹیپ بال ٹورنامنٹ ہوئے، بڑی بڑی ٹیمیں آئیں، پھر اس کے بعد یہاں ہارڈ بال کے میچ ہوتے تھے، صبح میں رات میں بھی ہوتے تھے، لیکن اس کے بعد باقاعدہ اس گراؤنڈ کو تباہ کرنے کے لیے ایک سازش رچی گئی۔ کھلاڑیوں نے صوبائی حکومت اور متعلقہ انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ گراؤنڈ کی حالت کو بہتر کیا جائے تاکہ علاقے میں صحت مند سرگرمیوں کے فروغ کا موقع مل سکے۔ کیمرامین سجاد رئیس کے ساتھ محمد حماد، سٹی 21۔ آگے بڑھے رب آپ کو بتائیں، ایگریکلچر نمائش میں مزیدار کھانوں اور مختلف اشیاء کے سٹالز کے ساتھ صحت مند زندگی گزارنے کے لیے مشورے بھی دیے جا رہے ہیں۔ ڈاکٹر تندرست زندگی گزارنے کے بارے میں آگاہی فراہم کر رہے ہیں۔ بات کریں گے اس حوالے سے راہیل بیگ سے۔ جی موجود ہیں ایکسپو سینٹر میں، جہاں پر ایگریکلچر نمائش کا دوسرا روز ہے، جہاں پر مختلف اقسام کے سٹالز لگائے گئے ہیں، جہاں پر مزیدار کھانے آنے والوں کی توازوں کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ وہیں پر مختلف اشیاء کے بھی سٹالز ہیں، وہیں پر ایک سٹال ایسا بھی ہے جہاں پر صحت مند زندگی گزارنے کے نہ کہ صرف مشورے دیے جا رہے ہیں اور احتیاطی تدابیر بھی بتائی جا رہی ہیں، اور اس وقت بھی یہاں پر ڈاکٹرز موجود ہیں کہ ہم کس طرح سے اپنی زندگی کو ہیلتھی بنا سکتے ہیں۔ تو آئیے ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا کہیں گے آج کے دور میں جو ہم سب کا لائف اسٹائل ہو گیا ہے، تو جو ہماری جو صحت کے حوالے سے کس طرح کے کھانوں کا استعمال کرنا چاہیے؟ دیکھیں، ہمیں صحت کے لیے جو کھانوں کا استعمال، ایک تو آج کل سب باہر کے جو کھانے ہیں اس کو زیادہ پریفر کرتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے وہی چیز جو ہے روزمرہ کی گھروں میں استعمال کریں۔ یہی ہم یہاں پہ ڈاکٹرز کو بھی بٹھالا ہے، ہم نے اپنا پانی لانچ کیا ہے، تو اسی میں کہ لوگوں کو صحت مند چیزیں ملیں یہاں پہ۔ دیکھیں، جو ایگریکلچر سے چیزیں جڑی ہیں، جو ہماری نیچرل جو چیزیں ہیں، وہ کتنا اثر انداز کرتی ہیں صحت کو بہتر بنانے کے لیے؟ سر میں اس میں سے بولوں 100% وہ ہماری صحت پہ، لیکن آج کل کے لوگ جو ہے نا اس چیز کو مانتے نہیں ہیں۔ وہ جاتے ہیں فوڈ پہ یا باہر کی چیزوں پہ، ان سب چیزیں، جیسے آپ ایگریکلچر پہ آ جائیں، آپ سبزی پہ آ جائیں، سبزی نہیں لوگ کھاتے ہیں، اور آج کل کے ہمارے جو بچے ہیں وہ تو کھاتے ہی نہیں ہیں، وہ چکن کھاتے ہیں، بس یہ سب چیزیں ہیں۔ بالکل، اس نمائش کا مقصد بھی یہی ہے کہ جو ایگریکلچر ہے اس کو فروغ دیا جائے، اور پاکستان ایگریکلچر کے حوالے سے مالا مال ہے، اور یہاں پر اسی حوالے سے جو فطرت سے جڑی چیزیں ہیں، جو نیچرل چیزیں ہیں، ان کے استعمال سے نہ کہ صرف ہم صحت مند رہ سکتے ہیں اور تندرست توانا بھی رہ سکتے ہیں۔ اس وقت یہ جو اسٹال ہے وہ بھی عوامی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ جی